Okay, so in last class we saw the basics of about the functions, that why functions are being used and how we can make use of them to perform various tasks, and anybody can use those functions without knowing what's going on in background, and the same thing can be done for different kind of tasks, like we took the factorial calculation, and we saw how it can be calculated in different ways. And then we saw how these functions can be applied. So there are few functions like ABS functions. All function was there. So all function returns when there is no non-zero value inside the list, then it returns true. If a single negative value is there, it will return false. And then there was enumerate function when we have to create the artificial index in the data type. Then we use enumerate function. Then we saw the filter function, so to apply filters over the data. And then also we saw the map, filter map, and then third was reduce. So map was when we have to apply same operation on all the elements of that data type. We use map function. And finally at the end we saw the reduce function. So reduce function is used to apply some interrelated operations between the values. So that's what we saw in our list, our functions in last class. So now this is so in now we are going to see the next part. So we saw the arguments also. Yeah, now we are going to see the arguments. What is argument in the data? So for example, if we have some task like this, there are two variables are there for which sum has to be printed. Okay. So, so till now, what we were discussing was use system-defined functions. So this all function is there. Then we saw enumerate, and we saw ABS. We saw apart from that we saw filter. Then we saw map, and then we saw reduce. These all are the system-defined functions. Okay. Now, these are the functions that are already given by system side, and we were making use of these in our code. So now we are going to talk about the user-defined functions. So user-defined functions, we have, although we have already created, but here, we were using map, and this is filter. So with these functions, this halfway or this div 3 num, these were also the user defined function. These are not the system defined functions. So user defined functions for this list, the list is also user defined function. This range is also sorry, this is a system defined function. Range, list, filter, print, input. So whatever you see, we saw the list, we saw the tuple, we saw the set, we saw the print function, we saw the range function, we saw the input function. All these are also the system defined functions, right? And user defined functions are made for some specific task. Okay, specific task from user side, like we are going to automate anything. So that's what is user defined function. So for example, we are just creating a simple calculation for the factorial that we saw earlier.
right? So that was also a user defined function. And here we saw this div 3 num we saw, or we saw this halfway function was there. This is halfway function. So all these were the user defined functions. So let's see how these functions work. So in these functions, basically what we are doing is we this def is how to define the function, and sum of number, this is the name of the function, and this num1 and num2, these are the parameters, or we can say these are the arguments of the function. So for any kind of task, you can identify such when passing things like suppose if suppose we have to calculate the multiplication between two numbers, so we can just define def multiply. Okay, and here we are taking a comma b. Okay, and simply we are returning a into b. Okay, simply this is a function, and now what we are doing is we are taking a value from user. So we are giving val1 is equal to integer integer input, enter the first number. Okay, and then val2 is equal to integer input, enter the second number, and then finally we are printing multiply val1 comma val2. Okay, simply we are giving so 3 4, and it has printed as 12. Okay, so what we are doing is we have not used anything here. We just called this function, and this function is automatically calculating these two values. So what we are doing is basically we are passing this val1 and val2 as a parameter to this, right? So what you can say over here is that well, one and sorry, A and B are the parameters, or we can say these are the arguments. These are the arguments which accept the values from where function function is called. Okay. So basically, when val1 is passed and val2 is passed, so val1 will be accepted in A and val2 will be accepted in B. So ideally, there is no need कि नाम भी इसमें सेम होने चाहिए. There is no such need. बहुत बार कुछ में होता है कि नाम सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं. जब आप पास करोगे तो वो नाम अपने अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सर। ओके, सो व्हाट इन द सेम वे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवीजन है, एंड फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप क्या करना चाहते हो. यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो. फिर यूजर से इनपुट लिया गया कि चारों में से क्या चाहिए आपको, एंड देन आफ्टर दैट अगर चॉइस चार से ज्यादा है या एक से कम है, तो इट इज प्रिंटिंग नॉट अ वैलिड चॉइस. अगर अगर वैलिड चॉइस सेलेक्ट की तो दोनों नंबर एक्सेप्ट किए गए और उनको कॉल किया गया और उनको यहाँ पे प्रिंट कराया गया. तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म कराई गई हैं. ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। तो इसमें वही चीजें हैं जो अभी तक हमने यूज की है. बेसिकली यहाँ पे सबके अलग अलग फंक्शन, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया था. मल्टीप्लाई फंक्शन में इतना ही था. ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है? ये जो पार्ट देख रहे हो क्या बोलते हैं? क्या सर? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है?
अंकित, उत्सव, आप भी बोल सकते हो। इन वेरी फर्स्ट लेसन वी स्टडीड दिस। बहुत पहले, सबसे पहले लेसन में हमने देखा था क्या होता है ये। कमेंट। दिस इज Yes, sir. मल्टी लाइन कमेंट, और वी कैन से डॉक स्ट्रिंग। राइट, कमेंट केवल केवल ये हैश के साथ दे रहे, केवल यही थोड़ी ना होता है। कमेंट ये भी होता है, ये भी कमेंट है। अगर यहाँ पे सिंगल कोट के साथ में दोगे तो भी कमेंट है यार। बेसिकली बस हैश में और इसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आप मल्टी लाइन कमेंट पास कर सकते हो, और हैश में आप एक सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हो, दैट्स इट। ओके। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है। अभी यहाँ पे ये आप पूरा फंक्शन देख सकते हो, ये पूरा कोड देख सकते हो कि इस कोड में यहाँ पे कैसे कैसे किया हुआ। तो एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, अभी इसने पूछा कि आपको चारों में से क्या ऑपरेशन करने हैं। मुझे अब सपोज मल्टीप्लीकेशन करना है, हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया। वही नंबर पूछेगा 5 6। ठीक है, तो इसने मल्टीप्लीकेशन दे दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। ओके। इसको आप और भी थोड़ा सा इनहेंस करके बना सकते हो। एनहांस करके बना सकते हो कि मतलब जब ये तब तक कैलकुलेट करता रहे जब तक आप इसको रुकने को ना बोलो। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करूँगा। पूरा टाइप करूँगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने कॉपी कॉपी किया, और अभी यहाँ पे हमने दिया choice is equal to 1, and while choice is equal to yes, और choice is equal to capital Y। ओके, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं Y। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पे, अब इसके अंदर पे लेके आते हैं। और इसके बाद अब इसके बाद एक दो स्टेटमेंट और ऐड कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, um, फिर um, फिर choice is equal to input, do you want to calculate more। यहाँ पे y और n हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया। ठीक है, ये तो यहाँ से कर देते हैं, और बस calculate more। ये हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, अभी पहले हमने यहाँ पे एडिशन कराया। ठीक है, अभी ध्यान देना, थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी मोस्टली कैलकुलेशन सेम है, लास्ट में थोड़ा चेंज होगा। 4 5, डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर, यस। तो इसने फिर से प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। 7 8, इसने मल्टीप्लाई कर दिया। डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर, यस। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6 और 3। ठीक है, अब नाउ डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर। ओके, यहाँ पे हाँ, अब सॉरी, यहाँ पे चॉइस मैंने गलत दे दी। तो यहाँ पे जैसे ही गलत चॉइस आई तो यहाँ पे नॉट अ वैलिड चॉइस आ गया। इसके बाद डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर हमने पूछा, तो अगर वाई नहीं आया, वाई के अलावा कुछ भी आ गया, ठीक है, तो ये इसको यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जी समझ में सर. आ रहा है। यस सर. तो इस तरह से आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी बना सकते हो। अब यहाँ पे
अभी हमने दिया कि अगर चॉइस वाई है तभी आगे आगे कंटिन्यू करे, अगर एन एन है या और कुछ भी है तो वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर उस वो एन इंटर करे तभी वो बाहर आए, अदरवाइज वो बाहर ना आए, बार बार पूछता रहे। अगर वो एन इंटर करे तभी वो बाहर आए, राइट। तो अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पे हमने सपोज 3 दिया और हमने 5 और 6 को हम यहाँ पे, सॉरी, हम यहाँ पे 5 और 6 को हमने मल्टीप्लाई करा है। डू यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर? अभी तो हम यस ही दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे एडिशन किया, 2 और 3 को हमने ऐड कराया। अब हम यहाँ पे देते हैं पी दे दिया हमने, तो भी इसने पूछ लिया। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस हमने 6 डाल दी। अब यहाँ पे डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर, हमने कहा क्यू। अभी भी एक जा रहा है अंदर, टू चॉइस दी 5 और 6, तो इसने कैलकुलेट किया, -1 आ गया। अब यहाँ पे डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर, अब हम यहाँ पे एन दे देते हैं। तो जब एन देंगे, एन एन देने पे भी अंदर ही है। तो चलो एक बार और कैलकुलेट, 3 और 4, और अब यू वांट टू कैलकुलेट मोर, कैपिटल एन, एन देने पे भी अंदर ही है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, एन देने पे तो बाहर आ जाना चाहिए इसको। चलो आगे ये तो आइडली बाहर आ जाना चाहिए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू एन होता है। आइडली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखता हूँ। डू यू वांट, ओके, यहाँ पे इसको डाला और हमने यहाँ पे एन कर दिया, सॉरी, यहाँ पे हमने दिया 4 चॉइस है, 5 से, और अब हम यहाँ पे एन कर देते हैं। एन पे बार बार कैलकुलेट क्यों कर रहा है ये? यहाँ पे हम कैपिटल एन दे देते हैं, कैपिटल एन पे भी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, यहाँ पे क्या है कि अब हमें दोनों में से एक ही देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। दोनों को देके काम नहीं करेगा यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे एंटर द चॉइस हमने दी, सपोज 4 दी चॉइस हमने, ठीक है, और हम यहाँ पे 4, 2, ओके, और हम यहाँ पे एन कर दिया तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे ये हमने एक ही चॉइस क्यों दी है? वो इसीलिए वो बार बार अंदर जा रहा था, एन एन या कैपिटल एन दोनों को कंपेयर करने पे, क्योंकि दोनों में से एक चॉइस उसको सही मिल जाती थी। इस वजह से वो बार बार अंदर जा रहा था, इसलिए यहाँ पे हम एक ही या तो स्मॉल एन देंगे या कैपिटल एन देंगे, दोनों चॉइस में यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यस के केस में दोनों काम कर जाता है, लेकिन नो के केस में वो इस एक ही चॉइस देंगे तभी काम करेगा, दोनों चॉइस देने पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप इसको यस के केस में जब दे दोगे तो आप दोनों चॉइस यहाँ पे दे सकते हो, वाई और चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई, राइट। तो जब एन दोगे तो आपको सिर्फ एक ही देना पड़ेगा। ये समझ में आया कि वो वर्क क्यों कर रहा था और एन देने पे बाहर क्यों नहीं आ रहा था? यस सर। ठीक है। तो
यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एन लगाओगे तो आपको यहाँ पे एक ही चॉइस देनी पड़ेगी। वहाँ पे कैपिटल एन वाली चॉइस आप दोगे तो काम फिर नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब इसमें और आगे चलते हैं। तो इसमें अभी आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो और आर्ग्यूमेंट जैसे हमने देखे थे, अभी ऊपर हमने पैरामीटर देखे थे। ठीक है, तो पैरामीटर तो हमने देख लिए। अब पैरामीटर के बाद हमारे पास आते हैं आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो कि वैल्यू वैल्यू आपकी सपोज यहाँ से पास की गई तो यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं हम पोजिशनल पैरामीटर्स। राइट, तो पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जिस ऑर्डर में यहाँ पे पास किए गए उसी ऑर्डर में यहाँ पे वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो दैट्स व्हाट इज पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है। दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि अब जैसे मान लो यहाँ पे ये हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, इस फंक्शन में हमने दो पैरामीटर पास किए, नेम और मैसेज। राइट, अब हमने मैसेज के साथ में एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे पहले से दे रखा है। राइट, अब अगर कॉलिंग टाइम पे केवल एक ही पैरामीटर पास किया गया, दूसरा पैरामीटर पास नहीं किया गया, तो क्या होगा? वो जो ये डिफॉल्ट वैल्यू है इसको कंसीडर कर लेगा और एरर जनरेट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, सपोज डेफ एडिशन, और यहाँ पे हमने दिया ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से कॉल करते हैं कि सपोज val 1 इज इक्वल टू 10 एंड val 2 इज इक्वल टू 20, और अब इसको यहाँ पे पास करते हैं प्रिंट टोटल इज, और हमने इसको इस तरह से कॉल किया कि यहाँ पे हमने दिया एडिशन ऑफ val 1 कॉमा val 2। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से कॉल करते हैं, हमने यहाँ पे कॉल किया, हमने एक ही दिया, वेल वन ही दिया, वेल टू यहाँ पे नहीं दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के लिए अगर यहाँ पे दो पैरामीटर, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो कॉलिंग में भी दो वेरिएबल होना जरूरी है। अदरवाइज वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से इसको इस तरीके से बना दें, हमने यहाँ पे एडिशन वन कर देते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हमने इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि हमने इज इक्वल टू 5, हमने यहाँ पे यहीं पे असाइन कर दिया। राइट, अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं वेल वन इज इक्वल टू 4 एंड वेल टू इज इक्वल टू 8। ओके, एंड अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं प्रिंट टोटल इज, और हमने यहाँ पे दिया एडिशन वन, और हमने यहाँ पे वेल वन ही पास किया, वेल टू हम पास ही नहीं कर रहे हैं। राइट, तो क्या होगा? यहाँ पे इसने स्टिल इट हैज गिवन आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डाल रखा है। राइट, तो बी इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जब अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रेजेंट होगा तो आपने यहाँ पे पैरामीटर वो पास नहीं भी किया है, सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया है, स्टिल इट विल कंसीडर दिस वैल्यू ओवर हियर, एंड जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे उठा के ले लेगा। अगर आपने यहाँ पे पास किया है, अगर आपने ये आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है वेल टू, तो वो जो पास किया है वही वैल्यू लेगा। अभी देखो यहाँ पे 12 दिखा रहा है। ठीक है, 8 एंड 4 है, तो 8 एंड 4 12 दिखा रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे पास नहीं किया है तो वो वैल्यू यहाँ की डिफॉल्ट वैल्यू ही उठाएगा। क्लियर? क्लियर है सर। ओके, तो इस तरह से आप अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को बना सकते हो। अब यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे खास बात ये है कि डिफॉल्ट
आर्ग्यूमेंट जो आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है मस्ट बी द राइट मोस्ट। ठीक है, आप जो राइट वाले जो वैल्यूज हैं उन्हीं को आप डिफॉल्ट बना सकते हो, लेफ्ट वालों को डिफॉल्ट नहीं बना सकते। तो फॉर अगर लेट सपोज आपके पास 3 पैरामीटर हैं, तो उसमें जो थर्ड पैरामीटर होगा, सबसे लास्ट पैरामीटर होगा, या लास्ट के 2 पैरामीटर होंगे, उन्हीं को आप डिफॉल्ट डिफॉल्ट बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने दे दिया सपोज मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे हमने दिया a कॉमा b इज इक्वल टू 5 एंड c। इस तरह से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये एरर रिटर्न करेगा। तो a इंटू बी इंटू सी हम कर देते हैं, और जस्ट हम इसको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो दे रहा है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये आपका नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ये फंक्शन ही नहीं क्रिएट किया है इसने। ठीक है, नॉर्मली फंक्शन कभी भी इस तरह से आउटपुट नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे एरर है तो वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सी की जगह पे हम 8 दे देते हैं, अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया और आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पे प्रिंट मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे दे दो सिर्फ हमने 10 दे दिया। अब यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो देखने वाले कह सकते हैं कि अरे एक वैल्यू का उसने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले से पास्ड है, तो इस वजह से उसने डायरेक्टली उनको एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे हमने बाकी दोनों को पास नहीं किया है। क्लियर है? जी सर। ओके, सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में ये ध्यान रखना होता है। फिर दूसरा आता है आपके पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको कितने पैरामीटर पास करने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पैरामीटर पास करने हैं, क्या चीजें अप्लाई करनी है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको देने की जरूरत है $KWARGS कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, अब जितनी भी पैरामीटर आप यहाँ से पास करोगे सबको उठा के वो यहाँ पे अपने अंदर कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ज्यादातर वैसे यूज जो सबसे ज्यादा होता है वो ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं इस तरह से, जहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह नहीं दी है। डिफॉल्ट वैल्यू भी फिर भी कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन यूजुअली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया कहीं पे भी। सो डेफ डेमो ए KWARG। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया KWARGS। ठीक, और अब यहाँ पे सपोज अगर हम मल्टीप्लाई का करते हैं तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न, हम तीन तीन वैल्यू ले लेते हैं। तो सपोज A प्लस B डिवाइडेड बाई C। ओके, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमने यहाँ पे दिया यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, suppose A is equal to 10 comma B is equal to 5 comma C is equal to 4। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी डेमो अंडरस्कोर KWARG, और इसके अंदर हमने ये पास कर दी, पास कर दी हमने, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। AW, ओके, ये तो बनाया हुआ है, बना हुआ है। प्रिंट वैल्यू, प्रिंट वैल्यू ऑफ वैल्यू 1 is
ए, देन चलो देखते हैं इसको। ए डिफाइन नहीं है। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट लगाना होता है। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे AWARGS और इस तरह से उसको लगाते हैं, नॉर्मल प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, अभी AWARG। ये कैसे प्रिंट होगा? अच्छा, यहाँ पे ये भी लगेगा। तो देखना पड़ेगा ये यहाँ पे तो डिफाइन, ये कभी वैसे यूज नहीं होता है, कभी भी KWARGS कभी हमने आज तक यूज नहीं किया है यहाँ पे। अभी बेसिकली इसको यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है और इस तरह से यहाँ पे पूरा मैसेज दिया हुआ है, उसको जस्ट यहाँ पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे ये फंक्शन पूरा कॉल किया हुआ है। यहाँ पे इसको डिक्शनरी कंसीडर कर रहा है, पता नहीं क्या है ये। वैसे नॉर्मली कभी मैंने इसको यूज नहीं किया है। हाँ, ये वाला जो आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट है ये यूज होता है कभी कभी। तो इस आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे अब जैसे मान लो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। इस फंक्शन में क्या है कि एक हमने मैसेज प्रिंट कराया है, एक मैसेज हमें भेजना है, मल्टीपल लोगों को मैसेज भेजना है, राइट। और मल्टीपल लोगों को मैसेज भेजना है, लेकिन मैसेज सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके केस में हम यहाँ पे आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमने इसको डिफाइन किया हेलो और स्टार नेम्स करके बनाया हुआ है हमने। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने पहले नेम्स को प्रिंट कराया और उसके बाद फिर इसको एज अ यहाँ पे अ, ये मान लो कि यहाँ पे हमने एक इसको बनाया है, टपल बनाया है। ठीक है, इस टपल को हम यहाँ पे वन बाय वन सारी वैल्यूज को प्रिंट करा रहे थे उसके लिए, फॉर वैल्यूज इन नेम्स, राइट। तो अभी सपोज इसको आप इस तरह से बना सकते हो। सपोज यहाँ पे डेफ कीवर्ड लिया और डेफ कीवर्ड के साथ में हमने दिया मैसेज प्रिंट। ओके, और यहाँ पर हमने दे दिया स्टार नेम्स। ये कभी कभी यूज हो जाता है। अब हम यहाँ पे देंगे, जस्ट जस्ट हमने दे दिया फॉर आई इन नेम्स, और यहाँ पर हमने दिया प्रिंट। और यहाँ पे फिर आपको वो नेम नेम देना है जो भी यहाँ पे डिफाइन किया किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि is attending the DA sessions in morning 8 a.m. ओके, सो अब यहाँ पे दे दिया फॉर्मेट और हमने यहाँ पे दे दिया नेम, फॉर्मेट नेम्स। ओके, हमने यहाँ पे इस तरह से इसको दे दिया। तो अभी जब जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो ये उसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे हमने दिया मैसेज प्रिंट। ठीक है, और हमने यहाँ पे नाम दे दिया अभिषेक। अभिषेक यहाँ पे नाम दे दिया, फिर दूसरा नाम दे दिया हमने अंकित।
और फिर तीसरा नाम दे दिया हमने उत्सव। ओके, हम इसको यहाँ पे रन कराया हमने, तो देखो यहाँ पे ये ये प्रिंट कर रहा है अभी तो सबके लिए एक साथ। अभी अभी चूंकि क्या है यहाँ पे, ये ये एक वो है, तो क्या बोलते हैं, टपल है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पूरा एक साथ प्रिंट करा है। लेकिन जब जब आपको इसको पूरे वैल्यू फॉर्म में प्रिंट कराना होगा तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू फॉर्म में प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो ये 1 बाय 1 इसको प्रिंट करेगा। तो अभिषेक, अंकित, उत्सव, यहाँ पे हम पूरा नेम्स दे रहे थे तो वो पूरा टपल यहाँ पे पास करा था। अभी यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट हुआ है ये टपल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ नेम्स, इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ नेम्स। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये टपल है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू हमने पास की ये एज अ टपल पास हो रही है, और हम ये जो लूप लगा रहे हैं ये हम टपल में लगा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर नेम्स को मतलब टपल को प्रिंट करना चाहते हो तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हो, नेम्स, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे ये भी एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू डालोगे वो सारी आ जाएंगी। आरती हमने डाल दिया, फिर आ, राध्या डाल दिया, फिर अच्युत, ठीक है। आप कुछ भी डालोगे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे एज इट इज उतनी बार प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगेगा कि जैसे इंडिविजुअल इसी के लिए मैसेज, इस मैसेज को प्रिंट किया गया है, ठीक है। जी सर। करेक्ट, एनी डाउट? नो सर। ओके। अब इसी में मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उन उन मल्टीपल चीज़ों के लिए भी आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आपको यहाँ पे दूसरा टपल देना पड़ेगा, दूसरा टपल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आप हायर लेवल की प्रोग्रामिंग में जाओगे तो रिकर्सिव फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब बेसिकली करता क्या है ये रिकर्सिव फंक्शन, दिस इज बेसिकली इट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो रिकर्शन में क्या होता है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, नॉर्मली नॉर्मली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन है, हम इसमें कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि ये जो फंक्शन जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ये इस फंक्शन के अंदर ही कॉल होने लगे, राइट। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है और आगे प्रोसेस करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिकर्शन को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया H4 रिकर्शन। इसको ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है और आपको इसमें ध्यान देके करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने जैसे लूप में लॉजिक लगाया था वैसे यहाँ पे भी लॉजिक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया वे अभी नहीं, तो व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं, उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्शन, ठीक है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, रिकर्शन एग्जांपल, ओके। सो फॉर एग्जांपल अभी हमें मान लो वैल्यू हमें एक रेंज है, एक एक नंबर दिया है, उस नंबर को हमें जब तक वो जीरो पे नहीं आ जाता हमें उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन प्रिंट टिल प्रिंट जीरो, इस तरह से हमने फंक्शन बना दिया और यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉल किया इफ नम
is greater than 0, then print और यहाँ पे print 0 एंड हमने यहाँ पे दे दिया num -1। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया और अब हम इसको कॉल कराते हैं print 0 और यहाँ पे सपोज हमने 10 पास कर दी। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हर जगह पे यहाँ पे इसको देखो नन कितनी बार प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 दिया है तो उसने 10 टाइम्स प्रिंट किया है। अगर हम यहाँ पे 5 दे देते हैं तो यहाँ पे देखो 5 टाइम प्रिंट किया। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये प्रिंट तब तक कर रहा है, ये ये वैल्यू हमें प्रिंट तब तक कर रहा है जब तक कि ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है, राइट। सॉरी, 0 से ज़्यादा है तब तक ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे नन 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 हर बार प्रिंट कर रहा है। तो ये अब ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि और देखो यहाँ पे एक दूसरी चीज खास बात क्या हो रही है। हमने यहाँ पे जब 5 पास किया तो ये इसने 5 बार प्रिंट किया, मतलब पहली बार इसने 5 के लिए प्रिंट किया, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, और जैसे ही 0 हुआ। अब यहाँ पे खास बात ये है कि आप देखो हमने ना कोई यहाँ पे लूप लगाया, हमने कोई लूप नहीं लगाया। यहाँ पे कोई लूप लगाया हमने? नो सर। ठीक है, हमने कोई लूप नहीं लगाया, हमने यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया, हमने यहाँ कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, राइट। बट स्टिल इसने वो ये इन सारी वैल्यूज को प्रिंट किया। तो ऐसा क्यों, कैसे किया इसने? तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ लूप ओनली। ये एक तरह का लूप, एक तरह के लूप की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन कर रहा है, ये इंटरनल ही सारी वैल्यूज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है, और यहाँ पे कंडीशन जरूर लगा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन जरूर लगा रहा है कि जैसे ये हो वैसे ये टर्मिनेट हो जाए, अदरवाइज ये बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो कैसे रही है, ये एक बार बस ध्यान दे लो। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाली चीज है। तो नहीं समझ में आएगा, मैं दोबारा से फिर से बताऊंगा। अब इसमें होता क्या है, इसने जब यहाँ पे प्रिंट 0 कॉल किया और यहाँ पे प्रिंट 0, यहाँ पे 5 नंबर पास किया गया, राइट। तो 5 नंबर यहाँ पे लेके आया, इसने चेक किया नम ग्रेटर देन 0 है। जब ये नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये अब यहाँ पे आया। यहाँ पे अब क्या हुआ, प्रिंट 0 फिर से कॉल हुआ, राइट। तो और यहाँ पे अब कॉल हुआ num -1 के लिए। तो पहली बार जब यहाँ पे यहाँ से पास किया गया तो 5 के लिए कॉल हुआ था। अब जब यहाँ से पास किया गया तो अब ये 4 के लिए कॉल हुआ। जब 4 के लिए यहाँ पे कॉल हुआ तो अब यहाँ पे वैल्यू 4 एक्सेप्ट हुई। अब यहाँ पे 4 की वैल्यू अभी भी 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 के लिए पास, जब 4 के लिए पास हुआ था, अब यहाँ पे प्रिंट के अंदर आया, यहाँ पे प्रिंट, और इसको यहाँ पे अब इसने इसी को 3 के लिए पास किया। हम बेसिकली यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट अलग कर देते हैं, प्रिंट नम हम यहाँ पे कर देते हैं, और प्रिंट 0 को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बेटर क्लियर होगा। अभी अभी यहाँ पे नंबर भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले जब यहाँ पे 5 के लिए पास हुआ तो इसने 5 को प्रिंट किया, फिर इसने इसको नम -1 मतलब 5 - 1 के लिए कॉल किया, राइट। फिर यहाँ पे गया, अब ये 4 के लिए कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नम -1 के लिए कॉल हुआ, तो 4 के लिए कॉल हुआ है। ठीक है, तो 4 के लिए कॉल हुआ, यहाँ पे फिर से गया, यहाँ पे 4, ये कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे इसने प्रिंट किया इसको, और प्रिंट करने के बाद फिर से प्रिंट 0 नम -1। तो अब यहाँ पे 3 के लिए कॉल हुआ, 3 के लिए कॉल हुआ, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे 3 प्रिंट किया, 2 के लिए कॉल हुआ, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, इसने 2 को प्रिंट किया, यहाँ पे 1 के लिए कॉल हुआ,
फिर से कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे 1 को प्रिंट किया। अब यहाँ पे प्रिंट 0 पे इसने कॉल किया, प्रिंट 0 पे इसने कॉल किया, फिर से 0 के लिए। अब यहाँ पे 0 पे गया, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि अब नम इज इक्वल टू 0 हो गया है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो फिर यहाँ पे अब इसने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया और यहाँ से बाहर आ गया। ये छोटी सी प्रोसेस समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, और जो डिक्रीमेंट वाला, सॉरी, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, और जो डिक्रीमेंट वाला पार्ट है वो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में ही कवर हो रहा है। तो वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ लूप। रिकर्शन ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। ये थोड़ा सा बस ये होता है कि जब आप लेंथी प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो रिकर्शन उसकी लेंथ को कम करने में बहुत यूजफुल होता है, बार बार। और बार बार हमें डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने को अवॉइड करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो, कोई भी ऑपरेशन इन द सेंस कि सपोज आप अपने एलिमेंट दे दिए, लिस्ट के एलिमेंट दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया, अम, नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे डिफ सम लिस्ट हमने किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज पास कर ली, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे अब हम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पास किया सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लूप में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे सम 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 वैल्यूज कॉमा सम हम यहाँ से पास कर देते हैं वैल्यू, ठीक है, और एट इज इक्वल टू एट प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देते हैं सम लिस्ट, और यहाँ पर हम दे देते हैं आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। नहीं, इसमें इसमें ये एग्जांपल काम नहीं करेगा। बेसिकली हर जगह रिकर्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो फालतू की इतनी चीजों में नहीं पड़ते, नहीं, टाइम भी लगेगा। अभी यहाँ पे देखो, अम, यहाँ पे एक फैक्टोरियल फंक्शन है, ठीक है, इस फैक्टोरियल को रिकर्शन से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल से को रिकर्शन से कैलकुलेट करने में देखो, यहाँ पे एक लाइन में ही सारे कैलकुलेशन हो गए, जबकि हम नॉर्मल बनाते थे तो हमें 3-4 लाइन लिखनी पड़ती थी। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो कैसे रहा है, इस कैलकुलेशन में बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट है जहाँ पे रिटर्न 1 इफ नम इज इक्वल टू 1। अगर नम की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न किया, अदरवाइज नम इंटू फैक्टोरियल नम माइनस 1 यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, सपोज अगर हम यहाँ पे 5 वैल्यू पास की गई, ठीक है, तो यहाँ पे 5 एक्सेप्ट होके आएगा, यहाँ पे चेक होगा कि नम की वैल्यू 1 तो नहीं है। अगर नम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 5 इंटू फिर फैक्टोरियल नम माइनस मतलब 4 के लिए कॉल हो जाएगा, फिर 4 के लिए यहाँ पे वापस पास होगा, फिर से यहाँ पे चेक होगा 5 इंटू 4 इंटू
फैक्टोरियल नम -1 मतलब 3 के लिए कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से ये तब तक कॉल होता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू यहाँ पे नम इज इक्वल टू 1 नहीं मिल जाती। जैसे इसको 1 मिलेगी, 1 रिटर्न करेगा, लास्ट में 1 आएगा और फिर लास्ट में पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मैं हम एक बार जैसे बना के मैं दिखाता हूँ। डिफ फैक्ट आप इसको इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे हमने नम ले लिया और यहाँ पे इफ नम इज इक्वल टू 1, देन रिटर्न 1, एल्स रिटर्न और नम इंटू नम, सॉरी, फैक्ट ऑफ नम -1। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। यही यही चीज वहां पे लिखी हुई, बस एक लाइन में लिखी हुई है। ठीक है, और प्रिंट फैक्ट ऑफ 5। ओके, तो यहाँ पे देखो एल्स में यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 120 इसने प्रिंट कर दिया। आप कोई कोई भी और वैल्यू लेके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हो क्या रहा है कि 1 बाय 1, जैसे पहली बार में 5 के लिए कॉल हुआ, 5 के लिए कॉल होकर यहाँ पे 5, तो पहली बार में क्या हो जाएगा, पहली बार में ये 5 इंटू फैक्ट 4 के लिए कॉल होगा। दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट 3 के लिए कॉल होगा। फिर तीसरी बार में ये कॉल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट 2 के लिए कॉल होगा। तो जब तक ये पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं होगा तब तक पिछले कैलकुलेशन भी परफॉर्म नहीं होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू फिर फैक्ट 1 के लिए कॉल होगा। जब यहाँ पे फैक्ट 1 के लिए कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा। तो लास्ट में क्या होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे ये कॉन्क्रीट वैल्यू आ गई, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, जी सर, क्लियर है। ये चीज समझ में आ रही है, फैक्टोरियल समझ में आ रहा है। यस सर। फैक्टोरियल को समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बार जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में जाते हो तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे आप जो आपका जो कोड है वो थोड़ा सा क्लीन लगने लगता है, एलिगेंट लगने लगता है। जो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो आपके बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड होके और आपके कोड को छोटा बना देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो हार्ड पार्ट होता है कि इसके लॉजिक को इंटरप्रेटेट करना सबसे मुश्किल होता है। जैसे इजीली मैंने यहाँ पे इसके लॉजिक को इंटरप्रेटेट कर दिया, बहुत उतना आसान होता नहीं है, काफ़ी इसमें मुश्किलें आती हैं। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जैसे यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल दिया हुआ है, तो फिबोनाची सीरीज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन। तो ये लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन क्या करता है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल अगर हमें सपोज कोई फंक्शन बनाना हुआ तो हम इस तरह से डेफ के साथ में फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे तो इसको हम कॉल कराएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हम जो एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं तो एनोनिमस फंक्शन में क्या है कि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। तो एनोनिमस फंक्शन इज फंक्शन दैट इज डिफाइंड विदाउट नेम। और ये हम कहीं पे भी डायरेक्टली इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हमें डेफ को कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेमडा कीवर्ड यूज करने की जरूरत है। तो जैसे ऊपर हमने फिल्टर और मैप वगैरह यूज किए थे ना, तो वहां पे हमने फंक्शन अलग से बनाए थे। यहाँ पे क्या है कि हमने लैम्डा के साथ में ही वो स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ ये हमारी रेंज हमने डिफाइन किया कि 0 से 100 तक के सारे सारे नंबर्स चाहिए इसको, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया फिल्टर के अंदर, वो हमने फंक्शन लगा दिया। फिल्टर में हम फंक्शन, फिल्टर की जगह पे हम फंक्शन लगाए थे उसने, तो वही उसी की जगह पे हमने यहाँ पे ये फंक्शन लगा दिया। ठीक है, इस फंक्शन में हमने लगा दिया कि अगर वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमें उसको प्रिंट नहीं करना है, और अपने डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम मैप में भी हमने लैम्डा फंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन का काम बस ये होता है कि वो आप कहीं भी लाइन के साथ में लगा सकते हो। बेसिकली इसको इन लाइन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है,
जी सर। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। ये आपका पूरा फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसमें अभी आपने प्रैक्टिस की है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने फाइल तो शेयर कर दी आई गेस। यस सर। हाँ, नंबर 6 की फाइल मैंने शेयर की हुई है, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो कि क्या इसमें चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है? जी। सो आवर कोर पाइथन इज अबाउट टू एंड, ये भी खत्म होने वाला है। कल हम थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग वगैरह देखेंगे, फिर कल ही हम numpy एंड pandas स्टार्ट कर देंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे फिर आपके लिए डिले होती जाएंगी। ठीक है, फिर आपका numpy एंड pandas आ जाएगा, यही सारे इम्प्लीमेंटेशन आगे भी होने वाले हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि प्लीज प्रैक्टिस वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, and until you are practicing you will be able to understand the things.